A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you standard 4th subject English. Students, in previous session we completed unit number 6. We all need each other very well. I hope you all understood it very well. Now we are going to start a new unit with the name lesson number 7, The Four Friends and the Bar of Gold. Unit name is The Four Friends and the Bar of Gold. Meaning of the unit name is चार दोस्त, द फोर फ्रेंड्स एंड द बार ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का बिस्किट. चार दोस्त और सोने का बिस्किट. ओके स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है वो चार दोस्तों की है जिनको एक गोल्ड बिस्किट मिलता है. फिर क्या होता है ये हम आगे स्टोरी में देखेंगे. ओके, सो ओपन योर बुक एंड फाइंड पेज नंबर 15. Now I am going to read the whole lesson. You all have to pay attention and listen to me very carefully. Okay, focus on my pronunciation. Then I will explain all the unit to all of you. First of all, I am going to read the lesson. Unit number 7, The Four Friends and the Bar of Gold. Greediness leads to disaster is a saying. Do you agree with it? Discuss in small groups and share your group's opinion with the class. Lesson. Once upon a time there were four friends. They were smart and intelligent. There was no opportunity in the village to make it big in life. So they decided to go to a city to make their fortune. They had to travel through a large forest. So they took a pistol, each to protect themselves from wild animals. On the way, they meet a wise man. He warned them not to follow the path they were on. He said they would get into trouble if they went that way. But they ignored his advice. They showed him their pistol and said they were all prepared for any danger which might come their way. They set on their journey. They set off on their journey. They were confident that they would be able to deal with whatever that might arise. To their delight, they come across a bar of gold lying on the path. They wrapped it in a piece of cloth and agreed to share it equally among themselves. Night fell and the four friends stopped to camp for the night. Two of them stayed to set up camp, while the other two went to a nearby village to buy food for the evening meal. Sitting by the campfire, the two who had stayed back to set up camp looked at the bar of gold and thought how wonderful it would be if they could divide it only among themselves. They decided to shoot the other two when they returned with the food. In the meantime, the two men returning with the food had the same thought as the other two who stayed back to set up camp. They decided to poison the food, kill their friends, and share the gold between the two of them. Greed was making them lose their heads. As they neared the camp, the other two shot them dead. The killers were hungry, so they ate their fill and quickly died of the poison. Next morning, the same wise man passed the campsite on his way to the river for his morning bath.
He saw the four dead friends and the bar of gold. He felt very sorry for them. They were smart, intelligent people. They had dreams. However, they could not overcome greed, and their greed led them to disaster. Without a second thought, he picked up the bar of the gold and dropped into the river so that it would not cause any further trouble. Okay, students, now I am going to explain this unit to all of you. ग्रीडीनेस लीड्स टू डिजास्टर, यानी कि ग्रीडीनेस का मतलब होता है लालच. ग्रीडीनेस लीड्स टू डिजास्टर, ये एक कहावत है और जिसका मतलब होता है लालच एक बुरी बला है. हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. नाउ लेसन. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 फ्रेंड्स. बहुत सालों पहले, बहुत दिनों पहले, बहुत टाइम पहले 4 दोस्त हुआ करते थे. They were smart and intelligent. वो चारों दोस्त स्मार्ट यानी कि होशियार और इंटेलिजेंट यानी कि बहुत ही क्लेवर थे. There was no opportunity in their village to make it big in life. वो एक छोटे से गांव में रहते थे. कौन? वो चारों दोस्त. उस गांव के अंदर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी. अपॉर्चुनिटी मीन्स तक, अवसर. उनके पास ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो कुछ बिग कर सके. टू मेक इट बिग इन लाइफ मीन्स टू बिकम फेमस, बहुत सारे पैसे कमाना. टू मेक इट बिग इन लाइफ मीन्स बहुत सारे पैसे कमाना, बहुत ही फेमस हो जाना. क्योंकि वो गांव में रहते थे इसलिए उनके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो ये सब कर पाए. So they decided to go to a city to make their fortune. So इसलिए उन चारों ने ये डिसाइड किया, ये तय किया कि हम लोग चारों जाकर सिटी में यानी कि एक बड़े शहर में जाकर, फॉर्च्यून मीन्स किस्मत, नसीब. फॉर्च्यून मीन्स किस्मत या तो नसीब. हम बड़े सिटी में जाकर अपना लक यानी कि किस्मत आजमा कर देखेंगे. They had to travel through a large forest. अब क्या था, वो चारों निकल पड़े और उनके रास्ते में एक लार्ज फॉरेस्ट यानी कि एक बहुत बड़ा जंगल आता था. They had to travel through a large forest यानी कि उनको एक जंगल में से होकर गुजरना था. So they took a pistol. Pistol means gun. इसलिए उन चारों ने एक गन ली. Why? Each to protect themselves from wild animal. क्योंकि वो जंगल से होकर पसार होने वाले थे. जंगल में तो एनिमल्स होते हैं. उन चारों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने आप को, आवर सेल्व्स मीन्स खुद, हम अपने आप को रक्षित करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए एक पिस्टल यानी कि एक गन साथ में ले लेते हैं. क्योंकि जंगल में तो ढेर सारे वाइल्ड एनिमल्स होंगे तो अगर कोई मुसीबत आई तो हम इस पिस्टल का इस्तेमाल कर सकेंगे. नाउ ऑन द वे दे मेट अ वाइज मैन. अब क्या हुआ कि रास्ते में उनको एक वाइज मैन मिला. वाइज यानी कि बहुत ही समझदार, एक समझदार इंसान मिला. ही वॉन्ट देम नॉट टू फॉलो द पाथ दे वर ऑन. उस समझदार इंसान ने उनको वॉर्न किया मीन्स आगाह किया, सूचना दी कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते पर मत जाओ. He said they would get into trouble if they went that way. उस समझदार इंसान ने कहा कि आप जिस रास्ते पर चारों जा रहे हो उस रास्ते पर आपको ट्रबल होगी. ट्रबल यानी कि मुसीबत. ओके, ट्रबल होगी क्योंकि ये रास्ता बहुत ही भयानक है. इस रास्ते पर आप चारों मत जाओ. ऐसा किसने कहा? वाइज मैन ने उन चारों दोस्तों से. बट दे इग्नोर्ड हिज एडवाइस. इग्नोर करना यानी कि अनसुना करना, ध्यान ना देना. उस वाइज मैन ने उन चारों को जो आगाह किया था, जो वार्निंग दी थी कि ये रास्ता अच्छा नहीं है आप चारों के लिए, आप उस रास्ते पर मत जाओ, ये सुनने के बावजूद भी उन चारों ने उस वाइज मैन की जो एडवाइस थी उसको इग्नोर किया यानी कि अनसुना किया, अनदेखा किया. They showed him their pistols and said they were
वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी डेंजर विच माइट कम देयर वे। दे शोड यानी कि उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया? देयर पिस्टल, अपनी पिस्टल दिखाई। किसको दिखाई? वाइज मैन को। और कहा कि हम किसी भी डेंजर के लिए, किसी भी मुसीबत के लिए वेल प्रिपेयर्ड है, यानी कि एकदम से तैयार है, क्योंकि हमारे पास ये गन है। सो वी हैव नो वरीज, क्योंकि हमारे पास तो गन है, अगर कोई भी मुसीबत आए तो हम उससे निपट लेंगे। They set off on their journey, वो अपनी जर्नी के लिए निकल पड़े। कहाँ पर? जंगल में। They were confident that they would be able to deal with whatever that might arise. Okay? Confident यानी कि उनको अपने आप पर विश्वास था, ट्रस्ट था। They are very sure कि उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास तो गन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो डील, दैट दे वुड बी एबल टू डील यानी कि किसी के भी साथ समझौता करना, सौदा करना। विथ वॉट एवर दैट माइट अराइज मीन्स उठना। अगर कोई भी मुसीबत आई, अगर कुछ भी हुआ, तो वो लोग उस डिज़ास्टर के सामने, उस ट्रबल के सामने, उस डेंजर के सामने एबल है डील करने के लिए। ओके, देन टू देयर डिलाइट दे कम across a bar of gold lying on the path. इतने में ही वो तो हंसी खुशी, डिलाइट मीन्स एकदम फुल ऑफ जॉय, आनंद के साथ खुश होकर वो अपने रास्ते पर निकल पड़े। तब क्या होता है? उनके रास्ते में उनको एक बार ऑफ गोल्ड, शोवन इन द पिक्चर हियर, ये देखो, ये दिख रहा है सोने का बिस्किट। इसको क्या बोलते हैं? बार ऑफ गोल्ड मीन्स सोने का बिस्किट। उनको रास्ते में, अपने पाथ में एक सोने का बिस्किट ऐसे ही रास्ते के ऊपर पड़ा मिला। वो बहुत ही प्रीशियस होता है, वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। एक बड़ा सा बिस्किट उनको अपने रास्ते में ऐसे ही लाइंग यानी कि पड़ा हुआ मिला। They wrapped it in a piece of cloth and agreed to share equally among themselves. फिर उन चारों दोस्तों ने क्या किया कि वो जो रास्ते पर उनको गोल्ड का बिस्किट मिला था, उसको एक कपड़े के अंदर रैप कर लिया। रैप करना मीन्स लपेट लिया। कपड़े के अंदर लपेट कर ये डिसाइड किया कि इस गोल्ड के बिस्किट को हम चारों इक्वली शेयर कर लेंगे, इक्वली डिवाइड कर लेंगे। They set off on their journey. Night fell and the four friends stopped to camp for the night. फिर क्या होता है? रात हो जाती है और वो चारों दोस्त ऐसा सोच लेते हैं कि हम यहीं पर कैंप लगाकर रात गुजार लेते हैं। Two of them stayed to set up camp. अभी वो चार दोस्त थे, तो उसमें से दो दोस्तों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर कैंप लगाते हैं। कैंप लगाना मीन्स वहाँ पर रुकने के लिए जो नेसेसरी हमें तैयारी करनी है, वो हम दोनों मिलकर, चारों में से दो लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर वो प्रिपरेशन करते हैं कैंप लगाने की, रात गुजारने के लिए जो थोड़ी बहुत थिंग्स की हमें नीड है वो हम यहाँ पर करते हैं। ओके, एंड the two who had stayed back to set up camp looked at the two of them stayed to set up camp while the other two went to a nearby village to buy food for the evening meal. दो वहाँ पर रुके कैंप सेट करने के लिए, एंड दूसरे जो दो थे उन्होंने ये सोचा कि हम नज़दीक में ही जो विलेज है, जो गांव है, वहाँ पर जाते हैं और कुछ खाने का सामान ले आते हैं। देखा आपने, चारों दोस्त डिवाइड हो गए। दो दोस्त कैंप के साइड पर ही रुक गए, ठीक है, और दो दोस्त गांव में गए कुछ खाना लाने के लिए। देन क्या होता है? सिटिंग बाय द कैंप फायर द टू who had stayed back to set up camp looked at bar of gold. फिर क्या होता है कि जो दो लोग चले गए हैं खाना लाने के लिए और जो दो दोस्त कैंप साइट पर कैंपिंग के लिए रुके हैं, वो जो गोल्ड बार है यानी कि सोने का बिस्किट है उसकी ओर देखते हैं, एंड
thought how wonderful it would be if they could divide it only among themselves. और दोनों दोस्त वहाँ पर रुके थे वो सोच रहे हैं कि हाउ वंडरफुल, कितना अद्भुत होगा कि ये जो बार है गोल्ड का, ये जो सोने का बिस्किट है, उसको हम दोनों में ही डिवाइड कर दे। अगर 4 पार्ट होते हैं 4 दोस्तों में से तो सभी को थोड़ा थोड़ा मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर 4 पार्ट करने की जगह पर अगर हम दोनों ही इसको इक्वली हाफ हाफ शेयर कर ले तो हम दोनों के ही लिए थोड़ा ज़्यादा बचेगा। They decided to shoot the other two when they returned with the food. उनके पास क्या थे, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या साथ में लिया था, एक गन साथ में ली थी। सो दे बोथ डिसाइडेड, वहाँ पर जो रुके हुए 2 दोस्त थे उन्होंने ये सोचा कि चलो ना कुछ ऐसा करते हैं कि जब वो दोनों रिटर्न आते हैं खाना लेकर तब हम उसको शूट कर देंगे, यानी कि उनको गोली से मार देंगे, बंदूक की गोली से मार देंगे। और ये जो बिस्किट पड़ा है उसको हम दोनों इक्वली शेयर कर लेंगे। इन द मीन टाइम, तब तक, मीन टाइम मीन्स तब तक, the 2 men returning with the food had the same thought as the other 2 who stayed back to set up camp. इतने में ही जो 2 दोस्त गांव में खाना लेने के लिए गए थे उनके भी दिमाग में सेम थॉट आया, सेम ख्याल आया कि जो कैंप पर बैठे हुए 2 दूसरे दोस्त हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वहाँ पर बैठे बैठे उन दोनों ने भी ये सोचा कि जब तक वो रिटर्न आते हैं तब तक हम उसे बंदूक से शूट कर देंगे। और वो जो दोस्त रिटर्न हो रहे हैं खाना लेकर उनके दिमाग में भी सेम थॉट आया कि वो जो दोनों दोस्त वहाँ पर कैंप साइड पर बैठे हुए हैं उनको भी हम मार ही देते हैं ताकि जो बिस्किट है उसको हम दोनों इक्वली शेयर कर लें। They decided to poison the food. इसीलिए उन्होंने क्या सोचा, पहले वहाँ पर जो बैठे थे कैंप साइड पर उन्होंने क्या सोचा कि हम गन से उनको शूट कर देते क्योंकि उनके पास वहाँ पर गन थी। और ये जो दोस्त रिटर्न हो रहे हैं उनके पास खाना था। ओके, सो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम खाने में जहर मिला देते हैं, अगर पॉइज़न मिला देंगे, जहर मिला देंगे तो वो दोनों खाएंगे और मर जाएंगे। और जब वो मर जाएंगे तब ये जो बार ऑफ गोल्ड है, सोने का बिस्किट है, उसको हम दोनों इक्वली शेयर कर लेंगे। Kill their friends and set the gold between the 2 of them. Greed was making them lose their heads. ग्रीड का मतलब होता है लालच। उनके दिमाग में क्या आ गई, चारों के दिमाग में क्या आ गई, लालच आ गई। और लालच के कारण उनका दिमाग शून्य हो गया, उनको सही गलत का ख्याल नहीं रहा, उनकी जो विवेक बुद्धि थी वो नष्ट हो गई। इसीलिए उन लोगों ने गोल्ड को लेकर अपने ही फ्रेंड्स को मारने का प्लानिंग कर लिया। As they neared the camp, the other 2 shot them dead. जब वो नज़दीक पहुँचे, कौन दोनों, जो खाना लेने गए थे वो दोनों जब कैंप के नज़दीक पहुँचे तब दूसरे दोनों जो वहाँ पर कैंप साइट पर बैठे थे उन्होंने उनको मार डाला, यानी कि शॉट कर दिया। The killers were hungry. फिर क्या होता है, भूख तो लगी ही थी चारों को, वो दोनों मर गए। अब वो खुश हो गए थे दोनों कैंप साइट वाले कि भाई चलो अब तो गोल्ड हम दोनों को ही मिलेगा। और उतने में ही उनको भूख लग गई। सो दे एट देयर फिल एंड क्विकली डाइड ऑफ द पॉइजन। क्विकली मीन्स जल्दी। फिर उन्होंने क्या किया, भूख लगी थी इसलिए वो दोनों दोस्त जो गाँव में खाना लाने गए थे और खाना लेकर आए थे, वो जो खाना लेकर आए थे वो खा गए। और क्या हुआ, क्विकली डेड, यानी कि जल्दी से मर गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द सेम वाइज मैन पास द कैंप साइट ऑन हिज वे टू द रिवर फॉर हिज मॉर्निंग बाथ। नेक्स्ट सुबह, यानी कि अगले दिन की सुबह को क्या होता है, जब वो चारों दोस्त जंगल में से पसार होकर सिटी में जाने के लिए निकलने वाले थे तब उनको जो वाइज मैन यानी कि समझदार इंसान मिला था वो अपने सुबह का स्नान करने के लिए, मॉर्निंग की बाथ लेने के लिए उसी जंगल में से गुजरा जहाँ पर वो चारों मरे पड़े थे। He saw the 4 dead friends and the bar of gold.
उसने क्या देखा? चारों मरे हुए दोस्तों को और उनके ही बाजू में पड़े हुए बार ऑफ गोल्ड यानी कि सोने के बिस्किट को। हैव फेल्ट वेरी सॉरी फॉर देम, उसको उन चारों दोस्तों के लिए बहुत बुरा लगा। They were smart, वो बहुत ही स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे यानी कि बुद्धिशाली पीपल थे। They had dreams, उनके कई सारे सपने थे कि भाई हमें गांव में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ कर दिखाने की, तो हम चारों सिटी में जाकर, बड़े शहर में जाकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे। ऐसे उनके अच्छे अच्छे बड़े बड़े ड्रीम्स थे। However, they could not overcome greed. Overcome means काबू पाना। ओके फिर भी क्या हुआ कि उनका अपनी ग्रीड यानी कि अपने लालच के ऊपर कोई काबू नहीं रहा। एंड दे ग्रीड लेड देम टू डिज़ास्टर, और उनकी ग्रीड यानी कि उनकी लालच ने ही बड़ी सी आफत को न्योता दे दिया। एंड देयर ग्रीड लेड देम टू डिज़ास्टर, यानी कि उनकी लालच ने ही एक बड़ी सी आफत को, एक बड़ी सी मुसीबत को न्योता दे दिया, क्योंकि उनके लालच के कारण ही उन चारों की मौत हो गई थी। विदाउट अ सेकेंड थॉट, एक सेकेंड भी सोचे बगैर ही पिक्ड अप द बार ऑफ गोल्ड, उसने पिक्ड अप यानी कि पकड़ लिया। किसने? वाइज मैन ने, जिसने देखा था कि चारों दोस्त मर गए हैं और उनके बाजू में ही बार ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का बिस्किट पड़ा है। उसने एक सेकंड का भी विचार किए बगैर उस गोल्ड के बार को उठा लिया एंड ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, और नदी में फेंक दिया। So that it would not cause any further trouble. That's why, क्योंकि वो बार ऑफ गोल्ड अगेन कोई ट्रबल क्रिएट ना करे, इसीलिए उस वाइज मैन ने उस बार ऑफ गोल्ड यानी कि सोने के बिस्किट को उठाया और नदी के अंदर फेंक दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर द 4 फ्रेंड्स एंड द बार ऑफ गोल्ड, ये स्टोरी कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें कभी भी इतनी लालच नहीं करनी चाहिए कि वो लालच किसी डिज़ास्टर को, किसी ट्रबल को न्योता दे दे। ठीक है, हमें जितना मिलता है उसी में ही हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, संतोष मानना चाहिए। अगर हमें अपने हैसियत से, अगर हमें हमारी एबिलिटी से कुछ ज़्यादा मिल जाए तो हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, बल्कि सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए कि भाई भगवान ने मुझे जितना दिया है उतने में ही मैं खुश हूँ। और अगर हमें अगर लालच आता भी है तब भी वो लालच अगर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हो, हमारे लालच से किसी और को नुकसान होता हो, तो ऐसे लालच को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज लालच, ग्रीड ऑलवेज क्या करता है? डिज़ास्टर को यानी कि आफत को न्योता देता है। ठीक है बच्चों, आपको भी अगर आपके पास कोई आपके फ्रेंड के पास अगर कोई अच्छी पेंसिल हो, कोई पेन हो, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसकी पेन में ले लूँ, उसकी पेंसिल में ले लूँ, उसका इरेजर में ले लूँ। ठीक है, वो उसका है तो उसके पास रहने दो। आपके पास जो कुछ भी है, आपके मम्मी डैडी ने आपको जो कुछ भी लेकर दिया है वो प्रेशियस है, उसकी कदर करो और उसी में खुश रहो। क्योंकि अगर किसी की चीज़ हम ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे हमें कोई खुशी नहीं मिलने वाली है, बल्कि कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही जाता है। ठीक है, सो हमें जितना मिलता है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग जो कि हमें इस कहानी से, इस स्टोरी से सीखने को मिलती है, वो ये है कि अगर कोई चीज़ हमें ऐसे ही मिल जाती है बगैर मेहनत के, जैसे कि ये 4 फ्रेंड्स ऐसे ही रास्ते में जा रहे थे और उनको बार ऑफ गोल्ड मिल गया, सोने का बिस्किट मिल गया। ठीक है, तो अगर कोई भी अच्छी चीज़ हमें बगैर मेहनत के मिलती है तो हमें कभी भी ओवरकम यानी कि अपने आपे में से निकल कर उसको अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना चाहिए कि चलो ये मुझे फ्री में मिल गई है और ये वो, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ हमें हमारी मेहनत से मिलती है वही हमारे हक की है। फ्री में मिली हुई चीज़, ऐसे ही बगैर मेहनत के मिली हुई कोई भी चीज़ के ऊपर हमारा हक है, ऐसा हमें कभी भी नहीं सोच लेना चाहिए। हो सकता है कि वो किसी और की हो, किसी की खो गई हो, कोई उसे आने वाला हो,
किसी ने मेहनत से वो चीज़ कमाई हो और ऐसे ही खो गई हो और हमें मिल गई हो, तो जो चीज़ जिसकी है उसको पहुंचा देनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर हमें हमारा कंट्रोल कर लेना चाहिए। ठीक है। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होंगी, आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि पहले मैंने स्टोरी रीड की थी विद देयर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वैसे ही बुक हाथ में लेकर आपको लाउडली ये स्टोरी अच्छे से रीड करनी है। ठीक है। उसमें से जो भी चीज़ आपको, जो भी वर्ड्स आपको हार्ड लगे उसके नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है। देन मैं यहाँ पर आपको हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी जब करवाऊँ तब आपको कंपेयर करना है, ताकि अगर कोई वर्ड न्यू है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप जब रीड करते हो तब स्टोरी में से आपको ऊपर से जा रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। Okay students, now I am going to write the glossary words of this unit and I will explain all the words to all of you. Okay. Intelligent. So what is the meaning of intelligent? A person who is clever, यानी कि ऐसा इंसान जो कि बहुत ही होशियार हो। Intelligent means a person who is clever. Now second, to make it big in life. To make it big in life, जिसका मतलब होता है to become famous or make money. To become or make money. Now third, ignored. Ignore का मतलब होता है took no notice of. And next, confident. Confident means very sure. And certain. Next, delight. Delight means great pleasure or joy. Next, wrapped. यानी कि कवर्ड और रोल्ड अप. नेक्स्ट, साइट यानी कि प्लेस. Okay students, here are our glossary word of the unit, the four friends and the bar of gold. Intelligent, INTELLIGENT, INTELLIGENT. Intelligent means a person who is clever. ऐसा इंसान जो बहुत ही बुद्धिशाली है, उस इंसान के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इंटेलिजेंट. ओके. नेक्स्ट,
to make it big in life. To make it big in life. ये एक फ्रेज है जो अलग अलग वर्ड से बना है, जैसे कि to make it big in life, and all those words have their different meanings. And इस पूरे फ्रेज का मीनिंग है to become famous और make money. प्रसिद्ध होना या तो बहुत सारे पैसे कमाना, कुछ कर दिखाना, उसके लिए हम इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं to make it big in life. Next, ignored. I-G-N-O-R-E-D. I-G-N-O-R-E-D. Ignored means took no notice of, यानी कि किसी के ऊपर ध्यान ना देना. अगर कोई अपनी बात कर रहा है, अगर कोई अपनी कुछ समस्या या फिर कुछ सूचन सलाह कुछ भी दे रहा है तो उसके और ध्यान ना देना उसको कहा जाता है इग्नोर करना, ध्यान ना देना, बात को अनसुनी करना. नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट. C-O-N-F-I-D-E-N-T. C-O-N-F-I-D-E-N-T. कॉन्फिडेंट मीन्स वेरी श्योर और सर्टेन. कॉन्फिडेंट किसी भी बात पर मक्कम रहना, पूरा यकीन होना. कॉन्फिडेंट मीन्स पूरा यकीन होना, विश्वास होना. नेक्स्ट, डिलाइट. D-E-L-I-G-H-T. D-E-L-I-G-H-T. डिलाइट मीन्स ग्रेट प्लेजर और जॉय. डिलाइट मीन्स बहुत ही ग्रेट प्लेजर यानी कि अत्यंत ही खुशनुमा होना, जॉय यानी कि आनंद. नेक्स्ट, रैप्ड. देखिए यहाँ पर W साइलेंट है, हमें W का प्रोनाउंस नहीं करना है, हमें R से प्रोनाउंस करना है. रैप्ड ऐसा नहीं, रैप्ड. ओके, W-R-A-P-P-E-D. W-R-A-P-P-E-D. रैप्ड मीन्स कवर्ड और रोल्ड अप. किसी भी चीज़ को कवर करना, किसी भी चीज़ से या तो फिर लपेटना, रोल करना. नेक्स्ट, साइट. S-I-T-E. S-I-T-E. साइट यानी कि प्लेस. जैसे कि इस लेसन के अंदर साइट वर्ड का यूज़ कहाँ पर हुआ था? कैंप साइट, यानी कि जिस स्थल पर उन चारों दोस्तों ने कैंप लगाया था. ओके स्टूडेंट, सो ये थे हमारे ग्लोसरी वर्ड. आज के आपके होमवर्क में यूनिट नंबर 7 द 4 फ्रेंड्स एंड द बार ऑफ गोल्ड के बिलो आपको ये ग्लोसरी वर्ड्स अच्छे से लिखने हैं. ओके, फेयर बुक के अंदर फर्स्ट पेज पर अगर आपका लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज जिस भी पेज पर ख़त्म हुई हो, अगर भले ही 6 लेसन में 2 लाइन ही लिखी हो, पूरा पेज खाली हो, फिर भी आपको 7 चैप्टर न्यू पेज पर ही स्टार्ट करना है. स्टार्टिंग में ऐसे ही ऊपर आपको द लेसन का नंबर और लेसन का पूरा नाम लिखना है. ये सब आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लेसन का पूरा नाम आपको लिखना है. एंड देन आपको ग्लोसरी करके उसी पेज पर ये 7 वर्ड्स, ये 7 वर्ड्स लिखने हैं. ओके, सो टुडेज योर होमवर्क इज राइट दिस glossary word in your fire book. Okay, in our next video we will discuss about hard words of this unit. Till then, see you soon. Stay home, stay safe. Goodbye.